Dr. Janzeb Mughal, how are you today? I'm very well, thank you. How are you? I have been wanting to have you on for a while क्योंकि आपकी journey जो है ना बड़ी interesting journey है. You came back from England. You're a maxillofacial surgeon. You came back from England to Pakistan. You got involved obviously in the healthcare sector. That's your profession. But at the same time, politics में भी आपने थोड़ा सा time गुजारा. फिर इस सब को छोड़ के आपने मैराथन रनिंग टेकअप किया एंड यू हैव रन 5 of the 6 major Abbott marathons in the world and you've run a total of I think 8 Seven. 7 marathons in the last 2 or 3 years. That's a huge feat. What I wanted to get you in for is to understand, how does a doctor, you know, who's ending up in politics suddenly deciding to become a marathon runner? Like, how does this happen? Right. Firstly, thank you very much for having me on your show. And I've also been wanting to come on your show for a while now. And yes, it's been a very interesting journey for me personally. But it's not a unique journey if you look at health professionals globally. In Pakistan, there is a certain manner in which health professionals conduct themselves. However, it's not how health professionals conduct themselves abroad, which is where I mostly lived and trained as well. So, as you mentioned in your intro, I came back from England, but even before England, I was born abroad. I was born in Abu Dhabi. That's where I was brought up. Then we came back to Pakistan, but shortly thereafter, after graduation, I went back abroad, and then I was in England and for some time in the US as well. So there, when I was living and working, I used to see that people had a very structured lifestyle, whereby they would be doing a profession, pursuing it dedicatedly, but then they would also give time to themselves, and some activity would definitely be part of their life. In our country, you will notice that that mostly involves playing street cricket. But other than that, few people will go to a gym, few people will take up a sport professionally, and fewer still will think about politics. Now, why politics and health? Well, training in England, and even till today, you will receive an email every fortnightly from the Royal College of Surgeons of England, and the title of which is called Political Health. Health as a subject is considered political because it requires not just work to be done within the hospital for the treatment of patients, but policies and administrative rules and regulations, bureaucratic involvement, because you've got budgets that you have to think about, what can be done, what cannot be done, what should be done, what should not be done. So, treating the patient in the clinic is really the end product of what is a much more longer and bureaucratic process. You must have heard of elections being conducted in, for example, Pakistan College of Physicians and Surgeons or Pakistan Medical and Dental Council. Similarly, elections are conducted abroad at the American Medical Society or the Royal Colleges of Surgeons. So, politics is part of the profession. And therefore, it is only being in politics that you can bring about a positive change where the health service of a country relies on the political diaspora. So, like today, if we say basic health units or primary or secondary or tertiary health units that should be providing the bulk of services to people in Sindh, Balochistan, or all over Pakistan, who is deciding those policies? It is politicians. So, until you cannot have a seat on the table with those politicians to explain to them, and if not convince them to give you that seat on the table, how will you bring about a change in society? So this was how I was thinking, because I saw surgeons, big surgeons, competent surgeons, well published surgeons, nothing less than professor rank, and abroad a professor is really a big deal, contesting elections to become presidents of the Royal College, and that process used to be political. So I clearly saw that there was a way in which politics and health profession can link, be honest, and deliver. But for that in Pakistan, I needed to align myself with the political So you're party. saying that the healthcare profession is riddled with politics. It is everywhere in the world. It is also Does that dependent. compromise healthcare's delivery to the end patient? यानी कि patient को क्या वो बेस्ट लेवल की ट्रीटमेंट मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए, या सियासत और पॉलिसीज़ और जो उसूल हैं जो ये लेट्स से हेल्थ केयर सेक्टर में जो पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं जी वो उनको ख़राब कर देते हैं सर्विस डिलीवरी को? देखिए, एक
सियासतदान जो कि हेल्थ सेक्टर से ताल्लुक नहीं रखता लेकिन उसकी ज़िंदगी में वो अस्पतालों में ज़रूर गया होगा, वो उसको Hmm. उस तरह का इंफॉर्मेशन या नो हाउ नहीं दे देती कि उसको पता हो एग्जैक्टली कि हमें आगे क्या करना चाहिए या हमें चीज़ों को किस तरह लेके चलना चाहिए। अब माजरत के साथ हम कराची में बैठे हुए हैं, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि आई एम रियली अप्रिशिएटिव कि सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है हेल्थ में। फॉर एग्जांपल आपको पता है जो साइबर नाइफ है या गैमा नाइफ है, लेकिन अगर मैं एज अ कैंसर सर्जन आपको बताऊं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंसर्स आर एक्चुअली ट्रीटेबल और क्योरेबल बाय साइबर नाइफ और गैमा नाइफ, तो वो परसेंटेज अगर आप भी निकाल लें तो देन यू विल आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, तो इतना पैसा इसमें डालने का फायदा हमें क्या हुआ, एज अपोज टू कि जो एक्चुअली वो कैंसर्स हैं जिससे लोग मर रहे हैं। नंबर 1 ऑरल कैंसर आदमियों में, नंबर 1 औरतों में ब्रेस्ट कैंसर, उसके लिए क्या किया? So the cyber knife doesn't solve that. देखिए साइबर नाइफ जिस तरह की बीमारियों के लिए बनी है और जिन मुल्कों के लिए वो बनी है, देखो ना नासा का रॉकेट अमेरिका में ही अच्छा लगता है, आप उसको यहाँ ले आएंगे ना तो शायद समंदर के करीब उसको जंग भी लग So जाएगा। this is the example of politics in healthcare that you are referring to. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें हमें चाहिए कि डेफिनेटली आपको यस कहने वाले लोग तो हेल्थ प्रोफेशन में भी मिल जाएंगे, लेकिन अभी रिसेंटली भी आपको याद होगा एक तनाज़ा खड़ा हुआ था केयर टेकर गवर्नमेंट में, जिसमें के अंदर जो केयर टेकर हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने भी ये पॉइंट उठाया था कि ये इतना महंगा इलाज हो रहा है, और वो क्योंकि खुद एक हाईली स्पेशलाइज्ड फिजिशियन है वो भी इस बात को समझते थे कि उन्होंने बोला कि ये एक्चुअली पैसों का अच्छा इस्तेमाल नहीं है, इससे बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं तनकीद नहीं करना चाह रहा, देखें आप कहीं भी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करेंगे बहुत अच्छी करेंगे। फॉर एग्जांपल SIUT का निज़ाम पूरे सिंध भर में फैला दिया गया है, ये तो बहुत अच्छा काम है, ज़रूरत है इसकी। पानी का क्या हाल है हमारे मुल्क में, लोगों को साफ पानी नहीं मिलेगा तो उनको मसले मसाइल तो होंगे, राइट? लेकिन आप साफ पानी पे तवज्जो दे दें तो शायद ये जो पैसे इतने सारे SIUT में खर्च किए जा रहे हैं ये फिर कहीं और भी इस्तेमाल किए जाते थे। आपको पता है क्रॉनिक डिजीजेस बेतहाशा, हेपेटाइटिस C हमारे मुल्क में अनडायग्नोस्ड कितनी है, हमारे यहाँ डायबिटीज़ कितनी अनडायग्नोस्ड है, हमारे यहाँ जिसकी वजह से इन्फेक्शंस कितने अनकंट्रोल्ड हैं। मैं जिन मरीजों को ट्रीट करता हूँ आपको पता है मैं उनके ऊपर बड़ी सर्जरीज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उनके ज़ख्म नहीं हील करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अंडा नहीं खाया होता, उनके अंदर एल्ब्यूमिन ही नहीं है हील करने के लिए। हमारे अंदर मेल न्यूट्रिशन का कितना बड़ा मसला है, हमारे यहाँ चाइल्ड मदर मोर्टेलिटी का कितना बड़ा मसला है। हम लोग एक रिएक्शनरी सर्विस ज़रूर प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें लगता है कि अच्छी से अच्छी और महंगी से महंगी टेक्नोलॉजी लाने से मसला हल हो जाएगा। NICVD बेहतरीन उन्होंने अपना नेटवर्क फैला दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये ख्याल है कि एक ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए और उस ड्राइंग बोर्ड के हिसाब से जो प्लान है वो इवनली और फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि राइट नाउ इस एज कैटेगरी में क्या है, इस एज कैटेगरी में क्या है और इस एज कैटेगरी में क्या है, और अगर ये हमारा बजट है तो क्या हम इसको इवनली डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि राइट नाउ वी नो 75% ऑफ आवर आबादी इज यंग पीपल। सो बाय स्पेंडिंग मोर मनी ऑन ओल्ड पीपल्स कैंसर्स आर वी सर्विंग द कम्युनिटी और आर वी इग्नोरिंग द कम्युनिटी? So if you're so passionate about healthcare and sort of you have a very good understanding of the challenges in healthcare specifically in Pakistan, जी तो सियासत छोड़ के मैराथन रनिंग पे क्यों फोकस कर दिया? देखिए सियासत एक मीन्स टू एन एंड मैं कहूँगा थी, क्योंकि शौक भी था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सियासत का शौक नहीं क्या था। शौक था सियासत में? देखिए सियासत में ऐसी क्या अच्छी चीज होती है कि इंसान को शौक हो सियासत अच्छा का? जिन चीज़ों का लोगों को शौक है ना वो मुझे नहीं है बाय द वे। तो मुझे सियासत में खिदमत का एक्चुअली शौक था, क्योंकि आपके साथ क्योंकि ताल्लुकात मौजूद हैं तो आपको ये बात पता होगी कि मैंने कभी कोई ज़ाती फ़ायदा सियासत से नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल मैं सियासत का हिस्सा रहा, लेकिन ना मेरे ख़िलाफ़ कोई FIR, ना मेरे ख़िलाफ़ कोई नैब का केस, ना मेरे ख़िलाफ़ कोई करप्शन, एम्बेजलमेंट या मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी। इनफैक्ट आई एम वन ऑफ दोज वेरी लकी पीपल कि सियासत छोड़ी तो जितनी इज्जत थी उससे ज़्यादा ही लेके निकला। बहुत अच्छे दोस्त बने इस मेरे जर्नी में, बहुत अच्छे लोग मुझे मिले इस सफ़र में और मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन देखें मुझे मेरे उस्तादों ने बरतानिया में ही, जब मैं इंग्लैंड में इतने साल रहा और जब मैं वहाँ ट्रेनिंग हासिल कर रहा था और जब मैं पाकिस्तान वापस आने का मैंने प्लान बनाया था, तो मेरे एक उस्ताद वहाँ थे, उन्होंने मुझे ये बात बोली जो कि मेरे जहन के अंदर बिल्कुल जो है ना वो एक जम गई। और वो ये बात उन्होंने कही कि देखो तुम जो करना चाह रहे हो ना वापस जाके, उसके लिए तुम्हें निज़ाम का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बैठ के नहीं होंगी, तुम्हें
you'll have to become part of the system like you became part of the system over here. So khair, I did have an interest in public speaking. I enjoyed debating. I enjoyed getting out and about on the streets. I was never scared of law and order situation issues क्योंकि हम 80s के उस कराची में पले बड़े थे जिसमें कि आप साइकिल चलाते थे. मैं फेडरल बी एरिया में उस वक्त रहता था कुछ 1.5-2 साल के लिए. तो मिनी बसें जल रही हैं, टायर जल रहे हैं, लेकिन हम तो आराम से अपना करते रहते थे जो भी करते थे. बस माँ बाप का ये था मगरिब से पहले घर आ जाओ, और अगर नहीं तो उनके पास टेलीफोन नंबर होते थे कि हम कहाँ जा सकते हैं. तो मैं जरा सा लक्कड़ हजम पत्थर हजम किस्म का बंदा था, डरता भी नहीं था इतना आराम से. तो मेरे लिए ये कोई चीज़ें इतनी अजूबा नहीं थी. तो मैं जिस पाकिस्तान में वापस आया तो जैसी भी सियासत कराची में उस वक्त की थी, तो उस वक्त मैं फिर करीब हो गया उस सियासी जमात से क्योंकि मेरा शौक़ था कि मैं फलाही काम करूं. तो उन्होंने भी मुझे उन्होंने बोला जी ये एक काम है, अगर आप करना चाहें, ये ब्लड बैंक है, इसमें आप देख लें. फिर उनका एक स्कूल था जो कि बिल्कुल मुफ्त था, मुझे कहा गया इसको आप देख लें. वो एक यूनिवर्सिटी बना रहे थे यूके के साथ एफिलिएटेड, मुझे कहा ये आप देख लें. हैदराबाद में एक अस्पताल था, बोला इसमें आपको ये इनपुट दे दें. तो इस तरीके से मैं फलाही कामों के ज़रिए उनके साथ अलाइन हुआ. कभी ये नहीं सोचा था कि वो इदारा, वो सियासी इदारा जिसके साथ आपने शमूलियत जी इख्तियार किया था, जी, उसकी रेपुटेशन में कुछ मसले मसाइल थे? क्योंकि एक तरफ फलाही काम तो चल रहे थे लेकिन दूसरी तरफ उनका एक और भी रेपुटेशनल रिस्क तो था बिल्कुल कि कराची में वारदातें उनके हाथों जी होती हैं, और जी जी, you know there's bags of people sitting in drains and whatever, I don't know, Yes. I'm not into politics, yes. but it had a bad reputation. So why would someone like you, foreign qualified graduate, so on, associate yourself with that kind of reputational risk? I'm glad you asked me that question actually, and I'm not answering this question to try and defend any political party at the moment, but I'm a realist. I don't look at things out of context. I look at things in context. So like for example, if we go back to Sinn Féin and Ireland when they were up in arms against the crown, to the extent that they even assassinated the last queen's uncle, Prince Philip Mountbatten's Mamu, Lord Louis Mountbatten, was killed by the IRA. So अगर कोई लाश इससे बड़ी हो सकती थी तो मुझे कोई बता दे. But then eventually when you started talking to them and treating them fairly, they came on the table and they spoke to you. So reactions from humans is to be expected if you will treat them unfairly. Now that I'm not saying is you don't condone someone because of that, but जिस पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, जिस माहौल की हम बात कर रहे हैं जो उस जमाने में क्रिएट कर दिया गया था. देखें, आपको भी पता है मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं कराची के अंदर. मुझे बताएं किसी और शहर में मिलिट्री ऑपरेशन अगर पूरे साउथ एशिया में हुआ हो किसी आबादी या किसी कौम के खिलाफ, फिर आपके इन लोगों के खिलाफ कटी पहाड़ी जैसे वाकया हो गए हों, फिर आपके हैदराबाद में पक्का किला जैसे वाकया हो गए हों, फिर आप उनको इस हद तक डिसएनफ्रेंचाइज कर लें कि आप उनको पाकिस्तानी तो कह रहे हैं लेकिन आप उनको कह रहे हैं कि जी आप नौकरियों के लिए ना अप्लाई करें, फिर नेशनलाइजेशन के नाम पे आप उनसे बिजनेसेस छीन लें, फिर उसके बाद आप उनका फेयर ड्यू भी ना दें. तो देखिए, अगेन मैं वकालत नहीं कर रहा, ना मैं पुरानी बातों को वो करना चाह रहा हूँ, लेकिन बिटरनेस तो आएगी. तो जब आप बिटरनेस को एड्रेस नहीं करेंगे तो ग्रीवियंसेस देन डेवलप एंड दे कैन बिकम अग्रेसिव एज वेल. फिर आपका जो सिस्टम है बदकिस्मती से वो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बजाय उनको फ्लेयर अप कर देता है. नाउ देखें, एक अदारा है हमारे यहाँ, मैंने जिक्र तो किया मिलिट्री ऑपरेशन का, लेकिन एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन हमारे मुल्क में तो पुलिस का ही अदारा है. उससे ज़्यादा कांस्टेंट 365 डेज ऑफ द ईयर कौन आपको प्रोसिक्यूट कर रहा है, कौन आपसे रेगुलरली भत्ता ले रहा है? आपको मतलब यू नो बेटर देन मी कि कितने करोड़ों का भत्ता महीने का सिर्फ कराची से पुलिस ले जाती है, ट्रैफिक पुलिस ले जाती है या रेगुलर पुलिस ले जाती है. तो इस एनवायरनमेंट के अंदर आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बिटरनेस और उसका एक रिएक्शन आएगा. जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं उस जमाने में आई थिंक ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑर्डर टू सर्वाइव had gotten this in their mind, some sort of a doctrine कि एक violent militant wing होना चाहिए. पुरानी न्यूज़ क्लिप उठाएं, अब सबसे डोसाइल जमात, मैं तो मुंह से कह रहा हूँ सबसे डोसाइल जमात उस जमाने में कराची में पीटीआई थी. आपको याद होगा एक जेआईटी बनी थी, 4 टारगेट किलर तो उसके भी मिल गए थे. तो माहौल एक क्रिएट कर दिया गया था. सम वर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स एंड डिपेंडिंग विच एरिया यू वर इन, इफ यू वर इन लियारी देयर वाज अ सर्टेन वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप जिसकी एक इंडियन मूवी भी बन गई है. तो सोने पे सुहागा वो भी क्या कर रहे थे. So you're saying that you need a militant wing for a political party to survive in Pakistan? I think in the 80s
In the 80s. In the But you were 80s. giving an example of a specific party जिसके issues थे because they were basically representing the minorities who had migrated, Yes. right? Hmm. उनके issues अलग थे, but does everyone need that kind of a wing? I think at the end of the day, I don't support violence because I never took part in violence. So I cannot say it is something that but all I'm trying to say is that violence is a human reaction that sometimes finds its way to the surface when grievances reach a point where they have not been addressed by the system. And when the system is the root cause of disenfranchisement rather than absorption and rather than nurturing a person or a population. Pakistan today is 76 years old, 76, 77 years old. This is one lifetime in today's day and age. We are so young right now. We're about to mature. So whatever happened in the past should not be pinned down as some sort of permanent way in which a certain segment of society or political party will conduct itself. Pakistan is going through a huge transition, I believe, since 1947 till today. And we are still in the process. Look at what's happening around us with our neighbors. Look at the amount of involvement of different intelligence agencies. They play roles as well over here. So in the larger picture, at the end of the day, yes, there was what was, but the time that I was getting involved with them, I did not see so much of that. At least I was not a witness to it, right? And I think politics at that stage was reaching a stage where such activities were on the decline as well, or they were really on the way out. Clearly saw that a few years later, there was a very strong military clampdown against such things because we all know the system will allow something to happen, otherwise nothing can happen. So when the system decided enough is enough, everything ended across the board. So then where did marathon running come into play? So this is a very interesting thing. It all started with, you know that I contested a by-election, PS 111 in 2018. And this was a regular election that I contested. I lost. But after that, things really started changing very rapidly in the country on the political landscape. You know what I'm talking about. 2018 में जिसकी हुकूमत आई थी और फिर उसके बाद जिस तरह की चीज़ें हुई थी हमारी सियासत में से लेके के नो कॉन्फिडेंस मोशन भी फिर आना शुरू हो गए और सियासत बहुत हद तक सियासतदानों के हाथ से ही बाहर आ गई, मैं तो कहूँगा कहीं और ही चली गई. मैं शायद उसके फेवर में नहीं था या मुझे उसमें अपना कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था. फिर कोविड आ गया. जब कोविड-19 आया तो हम सब घरों में बंद हो गए, मुझ समेत. और फिर लोगों ने साइकिलें चलाना शुरू कर दी, लोगों ने वॉक करना, रनिंग करना शुरू कर दिया. और मैं भी इसमें शुरू मैं भी हो गया. मैं भी साइकिल चला रहा था. मैंने फिर साइकिल से वॉकिंग शुरू की, वॉकिंग से आहिस्ता आहिस्ता रनिंग. आपको याद होगा मेरा वज़न बहुत ज़्यादा होता था उस ज़माने में, 30 किलो इससे बड़ा था, तो मुझे थोड़ा वज़न कम करने में भी टाइम लगा. लेकिन मुझे उसमें मज़ा बहुत आने लगा. जो मैंने अपने अंदर देखा, जो डिफरेंसेस आ रहे थे, एक तो जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे, और जो आपका जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो बेहतरी की तरफ जा रहा होता है, especially when you are free from all the external influences around you. And I used to find the most productive time of my day used to be that 1 hour in the morning जिसमें कि मैं सुबह सुबह उठ के फजर के टाइम पे या फजर से पहले रन के लिए जाया करता था या साइकिल चलाया करता था. वो जो वक्त था ना, वो बेहतरीन एक नशा था. तो ये बड़ा मुश्किल एक काम है कि आप पूरी ज़िंदगी एक तरीके से जीते हैं. जी. ठीक है. And then let's say halfway later, halfway through your life, you decide to completely change your habits and your system. You decided कि मैं सुबह उठूँगा और मैं भागने जाऊँगा. And this is someone who had not been a runner before, let's say 2020 or 2021. यानी कि पूरी ज़िंदगी कभी भागा नहीं है. नहीं. लेकिन अब आपने 5 marathons major के भाग लिए in the last 2 years. Abbott majors टोटल के. 7. टोटल 7 मैराथन तो मैराथन है, चाहे आप उसको मेजर बोले या माइनर बोले. तो 42 किलोमीटर के 7 रेसेस आपने कंप्लीट किए हुए हैं. और फिर ट्रेनिंग में तो फिर आपके हजारों किलोमीटर होते हैं. सवाल मेरा सबसे बड़ा आपको बुलाने का मकसद भी यही था कि मैं समझूं कि एक इंसान अपना माइंडसेट जी आफ्टर देव कंप्लीटेड हाफ ऑफ देयर लाइफ ऑन एवरेज, राइट? True. हाउ डू यू चेंज योर माइंडसेट to take on something like this? Because building stamina for running is Yeah. probably one of the hardest things to do, and it takes a long time, and if you don't maintain it, Yeah.
like I've not maintained it in the last 6 months. I went for a run yesterday and I was like, wow, yeah, 6 months ke andar it just goes It goes, like yeah, this. yeah. How do you change that mindset? देखें, मैंने जब कोविड में एक्सरसाइज करना शुरू किया, जैसे आपने जिक्र किया, मेरी ज़िंदगी तो दूर दूर से करीब करीब से भी इस चीज़ को नहीं समझ पाती थी। सियासत में होना और इलेक्शंस में हिस्सा लेना, टीवी शोज़ पे जाना, रातों को देर, खैर मैं तो काम उस वक्त भी करता था। मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो था वो एक अस्पताल है जिसके साथ मैं 15 साल से एसोसिएटेड हूँ, 15-17 साल से, नागन चुरंगी नॉर्थ कराची में, पेब्स हॉस्पिटल। वहाँ मैं सोसाइटी के ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनको सोसाइटी नहीं देखती। वहाँ इस तरह के लोग रहते हैं, गरीब मुतवस्सित तबके के लोग। आपको पता है कि मेरा जो अस्पताल है वहाँ 60% कराची की आबादी उसके चारों तरफ है, 60%। अगर हम 360 डिग्री टर्न करें तो अगर हम वहाँ खड़े हुए नागन चुरंगी की ब्रिज पे, तो सुरजानी टाउन, गडाप, सोराबकोट, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजमाबाद, नया नाजमाबाद, न्यू कराची, औरंगी टाउन, और औरंगी टाउन में तो 40%, 50% कराची की आबादी रहती है। तो मैं पिछले 15, 16, 17 साल से ट्यून्ड था कि कराची के मसले क्या हैं, क्योंकि मैं वहाँ हफ्ते में 3 दिन जाता था तो मेरे सामने वो मसले बैठे हुए होते थे। गुर्बत एक तरफ, लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ क्लीन वाटर, लैक ऑफ एवरीथिंग यू कैन इमेजिन। तो वहां जो मैं बीमारी देखता था, बीइंग अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन, वो थी मुंह का सरतान, या जिसको ओरल कैंसर कहते हैं, छालिया, पान, गुटखा, मावा, नस्वार और इन चीज़ों की वजह से। सियासत में आने का एक मेरा बहुत बड़ा मकसद ये था कि मैं इसके बारे में कुछ करूं, जिसको आज कहते हैं गुटखा बिल। तो मैं आ रहा हूं आपके सवाल की तरफ, लेकिन इसके लिए इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। तो गुटखा बिल 2010 में पहली दफ़ा आया सिंध असेंबली में। उस ज़माने में MQM की हुकूमत थी, डॉक्टर ज़गीर वॉज द मिनिस्टर, और गुटखा बिल वहाँ पेश कर दिया गया। लेकिन जो हतमी तौर पे ये कानून बना, वो बना गुटखा एक्ट 2019 दिसंबर, और जनवरी 2020 में ये साइन ऑफ हो गया एज लॉ। तो अब तो ये कानून है कि गुटखा What is the gutka bill? गुटखा And बिल, what is gutka, by the way? गुटखा बेसिकली एक नशा आवर मुंह का तंबाकू, जिसमें के छालियां मिली हुई होती हैं अलॉन्ग विद केमिकल्स, जो ये लोग मुंह में डालते हैं। इन अ वे ये दिन भर इसको रखते हैं, और इसके वजह से गुटखा, मावा, तंबाकू, छालियां जिस चीज़ में मिली हुई हो, इससे हो जाता है कैंसर। पाकिस्तान में माउथ कैंसर इज द नंबर 1 कैंसर कॉजिंग डेथ अमंग्स मेन एंड नंबर 3 इन विमेन, नंबर 1। ओके, सो कैन यू इमेजिन इसके फिगर्स और नंबर्स क्या होंगे। गुटखा बिल जो है उसमें बाकायदा सज़ा का तयन किया हुआ है कि गुटखा बनाने वाला, गुटखा डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, गुटखा बेचने वाला, सिवाय ख़रीदने वाला, इन 3 लोगों के पकड़ने के बाद इनकी सज़ा क्या होगी। और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इसमें सिंध हाई कोर्ट का हुक्म भी मौजूद है कि ये गुटखा बिल इन्फोर्स किया जाए और क्लैम डाउन किया जाए कि गुटखा बनाने वाले और डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। लेकिन बदकिस्मती से गुटखा हर जगह बिकता है। So why is gutka that much more worse than a cigarette? क्योंकि देखिए, एक तो ऑरल कैंसर, सिगरेट तो हम चेस्ट की तरफ चले गए ना, तो आप नस्वार से चलें, कंपेयर कर लें, क्योंकि नस्वार एक फिर भी ज़रा एक लाइटर है। फॉर्म ऑफ ऑरल। गुटखा के अंदर एक्सेलरेटर्स मौजूद हैं, जिनको ये लोग कहते हैं ना केमिकल्स डाल दिए गए हैं। तो केमिकल्स क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं अब्जॉर्प्शन को ऑफ कार्सिनोजेंस थ्रू द म्यूकोजा इनटू द अंडरलाइंग मसल। तो अगर एक चीज़ x के स्पीड से जा रही है, तो x इंटू 10 के स्पीड से जब वो जाएगी और आप उसको पूरी रात रख के बैठेंगे, तो वहाँ तो क्यों कैंसर रखते हैं ये? What's the नशा। नहीं, but what's the high? Is it like a cigarette high? Is it a देखिए, light-headed ना feeling? मैंने कभी इस्तेमाल किया है, ना मैं इसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। But you meet a lot of people who हाँ, तो जो तो उनसे जवाब मुझे मिलता है यूजुअली इट्स, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि चीनी भी एक नशा है ना, मीठा भी एक नशा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक चीनी है, नशा है, बिल्कुल हर चीज, अल्कोहल नशा, कॉफी का भी ना, कैफीन का भी नशा हो सकता है। हैश, हशीश। तो इसमें हर ऐसी चीज। क्या मतलब, इट डजंट लुक लाइक अ वेरी अपीलिंग नशा। क्या प्राइस पॉइंट का इशू है कि इट्स अफोर्डेबल नशा, सिगरेट से सस्ता है? व्हाट इज इट अबाउट दिस पर्टिकुलर नशा दैट इतनी इसकी प्रेवलेंस है, इवन दो इट इज सो प्रॉब्लमैटिक? देखिए, मेरा जो इसमें ज़ाती असेसमेंट है, जो मैंने इसके ऊपर मुताला किया है खुद, जो मैंने सुना है लोगों की बातें, ज़ाहिर है मैंने बोला भी है ना लोगों को, क्यों खाते हो भाई, क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि इससे मर जाओगे Right. तुम। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं मेरा ड्राइवर खाता है, मेरा चौकीदार खाता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ, तो इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन, नॉट इफ। अब इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन कि इसको कैंसर कब होगा। आई फील कि एक सर्टन तबके में ये बन गया है एक तरह का मर्द हजरात में अ काइंड ऑफ अ सोशल आइटम। आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, लेकिन मेरे लिए अब ये यही है कि आप
पंक्चर की दुकान पे जाएंगे तो वहां जितने भी 3 के 3 लड़के होंगे, उनके घर वाले रो रहे होंगे कि हम इसको थप्पड़े मारते हैं, हम इसको मना करते हैं कि तुम ये नशा ना करो, हम इसको हर चीज कर, क्योंकि मैं तो पूछता हूं ना पेरेंट्स से कि रोका क्यों नहीं, तो कहते हैं हम तो रोकते थे, ये चोरी छुपे बाहर जाके करता था। अब जब चोरी छुपे बाहर जाके कर रहा है तो वो किन से मिल रहा है? वही दोस्त, वही जो उसकी पंक्चर की दुकान पे जहां वो काम करता है या जहां वो ठेला लगाता है। और बदकिस्मती से मुझे लगता है कि ये एक सोसाइटियल फैक्टर हो गया ऑफ एक्सेप्टेंस, कि वो 3 लड़के कर रहे हैं तो हमें उनके साथ बैठने के लिए शायद हमें भी करना पड़ेगा, पीयर प्रेशर। और फिर नशा तो फिर लग जाती है ना, कहीं से भी आपको लगना शुरू हो जाए। तो ये आई एम रियली सॉरी टू से कि ये आप देखें डेली वेज अर्नर्स आपके भी आते होंगे दफ्तर में या घरों में, चाहे वो एक सर्टन इलेक्ट्रिकल प्लम्बर या जो भी पे, सब आजकल अपने मुंह में आपसे बात कर रहे हैं, मुंह भरा हुआ है। तो प्रेवलेंस इसकी बढ़ गई है विद टाइम बहुत ज्यादा। और बदकिस्मती से इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा माफिया है वो इंटीरियर सिंध में ही है जो इसको बनाता है। और आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपके शो पे मैं ये बात कह रहा हूं जो कि सबको पता है कि इसमें बाकायदा सरपरस्ती उन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की है जिनका काम है इसको रोकना। वो ही इसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें पैसा बहुत है। ये एक ऐसा नशा है जो कि घर घर में मौजूद है, जबकि ये हराम भी है। इसके खिलाफ फतवे मौजूद हैं अल अजहर यूनिवर्सिटी के कि ये खाना भी हराम है, क्योंकि आपको पता है ना कि जिस चीज से आपकी सेहत को नुकसान हो या मुजरे सेहत हो वो नशा ही हराम है आपके लिए। तो गुटखा और ये इस तरह की तमाम चीजें आप पे हराम है, लेकिन हम एक मुसलमान सोसाइटी, हमने हलाम और हलाल को शराब की बोतल में बंद कर दिया कि ये करोगे तो हराम है, ये इसके अलावा बाकी सब कर दो हलाल है। ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ सोसाइटी। तो खैर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो जब मैंने वहां ये देखा कि ओरल कैंसर वगैरह वगैरह, तो मैं क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस में हूं तो मैं ये गरीब मरीजों को इनका इलाज तो करता हूं, जाहिर सी बात है, लेकिन अपने प्राइवेट प्रैक्टिस के जरिए किया करता था। बहुत लड़ झगड़ता था अस्पतालों से कि यार ये कम कर दो, ये कम कर दो, ये कम कर दो, लेकिन कितना कम कर देंगे, वो भी एक हद होती है। खैर, इसी सफर के दौरान कोविड-19 आया। थोड़ा बहुत मैंने ये रनिंग वगैरह, अपना वजन कम करना शुरू किया, सियासत को भी खैर बात कह दिया, लेकिन वो इंसान के अंदर एक वो रह जाता है ना कि यार मुझे कुछ तो करना था, कुछ तो करना था। अब वो क्या वो चीज थी जो मेरे आंखों के सामने थी, वो यही थी, ओरल कैंसर, एवरी डे, डे इन डे आउट। सो मैराथन रनिंग को ओरल कैंसर से कैसे कनेक्ट किया? तो जो डिसिप्लिन आपके अंदर पैदा हो जाता है ना व्हेन यू बिकम अ मॉर्निंग रनर, जो एक डिसिप्लिन होता है, और एज यू नो बीइंग अ फेलो, माशाल्लाह आप भी वर्कआउट और वेट लिफ्टिंग और सब करते हैं, यू आर एन एथलीट इन माय ओपिनियन। तो एक एंडोर्फिन रिलीज होती है बॉडी के अंदर। एंडोर्फिन एक नशा ही है, मॉर्फिन का डेरिवेटिव है एंडोर्फिन। तो जो एक नशे से आपको फायदा मिल सकता है वो एंडोर्फिन से आपको मिलता है, रनर्स हाई जिसको कहते हैं। उसके बाद यू फील ग्रेट, यू फील यू कैन टेक ऑन द वर्ल्ड। सेम थिंग यू गेट इन अ वर्क, इन अ वेटलिफ्टिंग, इन अ वेटलिफ्टिंग, इट्स साइक्लिंग, एनीथिंग, एनी गेम यू प्ले। तो वो जो एंडोर्फिन का नशा है ना, आई थिंक कि मुझे उसकी जो क्रेविंग थी ना, आई वांटेड दैट हिट रिपीटेडली, आई kept going and I never stopped. Even though you had to wake up that early in the morning? So I used to wake up earlier. I used to wake up earlier, and maybe that's the kind of person I am. So I will accept that, you know, I am an exception to the fact that not everyone did it. You know कि जब lockdown lift हुआ, everyone went back to their normal life except for Dr. Jahanzeb Mughal. But the question is कि it means कि अगर आप इतना मेजर लाइफ चेंज लाते हैं जहाँ पे आप फजर से भी पहले उठ के सुबह भागने जाएंगे 1.5 घंटा 1 घंटा जो भी है, जी, क्योंकि वो ट्रेनिंग मैंने की थी 2 हाफ मैराथन्स में भी आप लोगों के साथ मैंने भागे हैं, बिल्कुल। तो उसमें मुझे ये अंदाज़ा होता था कि आपकी जो लाइफ में आपको एक मेजर चेंज लाना है, बिकॉज यू हैव टू गो टू बेड लाइक बाय 9-10, यू कांट रन द नेक्स्ट डे अ गुड रन इफ़ यू डोंट हैव अ गुड नाइट स्लीप। स्लीप की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, विच मीन्स कि अगर आप जल्दी सो रहे हैं तो सोशलाइजिंग और दोस्त और यार और वो सब सारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे इस शहर से शहर में हर चीज़ तो लेट चलती है। तो हाउ डू यू मेक दैट कॉन्शियस डिसीजन टू गिव अप a past life that you were so intertwined with, not knowing what the new life holds in store? How do you make that decision? Elite Kipchoge, the world #1 marathon runner, very beautifully said in an interview, is that in order to become a marathon runner, or in order to become any successful athlete, you have to have a very high dose of vitamin N. And vitamin N is no. No. So one thing that you learn in life to say is no, because you prioritize yourself.
And when you prioritize health, you are prioritizing yourself. And with health comes mental health. But that's a very lonely life, no? You will be surprised because you know, and you've been following my journey closely, that I have actually ended up making many friends, new friends, and those hits that I've hit in philanthropy, I can say for a fact would never have happened in the previous lifestyle. So, in fact, my life improved. It became better. And the people I met in that journey helped not only me transform as a person, but also that journey that was missing that I couldn't achieve when I thought I could do it in politics. That got accelerated and fast-tracked. How did it get accelerated? So when I was this close to transforming myself mentally and physically, I signed up for my first marathon, or rather I was coerced into signing without knowing what I was signing up for, and that was the Amsterdam Marathon. I signed up for it in April 2022, and I remember signing up for it and then looking it up on the internet कि marathon का distance कितना होता है. पता चला कि जी 42.2 kilometers. At the time मैं half marathon कर चुका था. I thought it's really not a big deal, हो जाएगा. तो खैर ट्रेनिंग की, सब किया. सितंबर 16 2022 को मैंने अपना पहला मैराथन भागा. I don't think I have experienced any feeling like that in my life. जिन इमोशन से आप गुजरते हैं while you're running, मैंने 4 घंटे 30 मिनट या 22 मिनट में किया, उसमें आपकी जिंदगी आपके सामने से गुजरती है जब आप भागते हैं. आपकी जर्नी, आपके इमोशंस, आप हंसते भी हैं, आप रोते भी हैं, आपको अपने आप पे ही गुस्सा आ रहा होता है, आप अपने आप से रन के दौरान पूछते हैं ये मैं क्यों कर रहा हूँ. एक अजीब सी कैफियत से आप गुजरते हैं. लेकिन जिस वक्त आप वो रन कंप्लीट करते हैं, आपके जिस्म के अंदर जितने एंडोर्फिन्स पैक्ट हुए होते हैं, फिर उस वक्त जो आपको हाई मिलता है and that feeling of achievement, you have tears of joy running down your cheek. It transforms your life. I think that was the addiction that started of marathon running. And then along the way, meeting the right people. As you know, I've met a lot of people in my running, and alhamdulillah, now with my journey, I have become a bit of a mentor for people in my own right, क्योंकि मैं 53 का होने वाला हूँ. That makes me one of the oldest runners in Pakistan. और वर्ल्ड मैराथन मेजर्स का जो टारगेट होता है जिसमें कि 6 आपके कंप्लीट होने वाले हैं, मैं अपने एज ग्रुप में तो पहला पाकिस्तानी हूँ और पहला पाकिस्तानी डॉक्टर हूँ जो पाकिस्तान में रहता है, जो कि ये दोनों चीज़ें अचीव कर रहा है. तो एक इतनी बड़ी आबादी में जहाँ इतने डॉक्टर्स भी मौजूद है, वहाँ अगर सिर्फ एक ही डॉक्टर ने ये अचीव किया है, तो ये ज़रा सोचने की बात है कि जी मैंने कुछ अनयूजुअल अचीव किया है या हमारा सोसाइटी लोगों को एक अनयूजुअल डायरेक्शन में ले जा रहा है. क्योंकि अगर मैं बरतानिया में, अमेरिका में या कहीं और भी होऊंगा, मैं इस वक्त इतने डॉक्टरों को जानता हूँ पाकिस्तानी ओरिजिन के जो यहीं के पले बड़े हैं, या लाहौर के किंग एडवर्ड के, या कराची के डाउ के, या आगा खान के, जो इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं, मेन एंड वुमेन, एंड दे आर मैराथन रनर्स. वहां जाके आप मैराथन रनर बन गए. यहाँ आप अभी बस वो 4 दीवारी और मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक. तो यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ हम क्रिकेट से आगे ही नहीं जा पाए. राइट. हॉकी ने कोशिश की, उसको भी हमने धकेल के पीछे कर दिया. क्रिकेट की लॉबी ने, स्ट्रॉन्ग लॉबी है. सो नाउ थिंग्स आर चेंजिंग पाकिस्तान के अंदर. खैर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट हाउ ओरल कैंसर बिकेम लिंक्ड विद मैराथन रनिंग, तो मैंने जब एम्स्टर्डम मैराथन करने वाला था मैं, और मेरे जहन में ये ख्याल आया, तो क्योंकि मैं बाहर दुनिया में देख चुका हुआ था कि लोग जब कोई ना कोई स्पोर्टिंग इवेंट मैराथन जैसा करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, तो मेरे दिमाग के अंदर एक कॉन्सेप्ट था कि मैं उस हस्पताल में, नागन चुरंगी नॉर्थ कराची में, एक यूनिट बनाऊं जिसमें कि मैं गरीब मुतवस्सित तबके का माउथ कैंसर की सर्जरी को मैं कम से कम में कर पाऊं. जितने पैसे प्राइवेट सेक्टर में वो दे रहे हैं वो ना दें. पहले मेरी ये सोच थी. तो इसके लिए मुझे एक टीवी चैनल ने बुलाया. बहुत बड़ा टीवी चैनल है, कहते हैं पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है. मैं उस पर गया, उन्होंने मुझे दावत दी. उनका मॉर्निंग शो एक बड़ा फेमस है. और मुझे नहीं पता कि क्या हुआ कि मैं गाड़ी पार्क करके स्टूडियो में एंटर हुआ, और मैंने वहाँ बैठ के जब बयान दिया तो मुझे उन्होंने बोला कि आप ये मैराथन रनिंग जो कर रहे हैं, इसको आप क्यों कर रहे हैं और आप इससे क्या करना चाह रहे हैं. वहाँ मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं एक इदारा बनाना चाहता हूँ जो मुंह की कैंसर की सर्जरी मुफ्त करेगा. और ये मैंने नेशनल टीवी पे बोल दिया. तो फिर अगला सवाल मुझसे पूछा गया कि आपको इसके लिए पैसे कितने चाहिए. अब मैंने होमवर्क तो नहीं किया हुआ था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मुझे पता था कि जी बिल्डिंग तो हमारे पास मौजूद है, जगह हमारे पास मौजूद है, मैंने अपनी तरफ से एक बात बोली. मैंने कहा मुझे इसके लिए 5 मिलियन चाहिए. तो होस्ट ने कहा ये तो कुछ भी नहीं होता, ये तो एक टोयोटा कोरोला की कीमत है. तो उन्होंने टीवी पे बोला, आए जी जो भी समझता है कि जी ये जो काम कर रहे हैं एक टोयोटा कोरोला इनको.
और इस तरह से यकीन करें कि मेरा ये सफ़र शुरू हुआ। और खैर फिर हमें किसी डोनर साहब ने पैसे भी दिए, हमने उसकी तामीर शुरू कर दी। और जब हमने इसको खोला तो आपको याद होगा मैंने सीव्यू पे एक रन ऑर्गेनाइज किया था फरवरी 2023 में, और वो पेब्स हॉस्पिटल रन था, उससे भी हमें पैसे मिले। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 20 मार्च 2023 को, जो उस साल पहला रमज़ान मुबारक का रोज़ा था, उस दिन हमने यहाँ पहली सर्जरी की। और वो दिन है, और आज मार्च का महीना है 2026 26 हो गई, 3 साल बाद। 3 साल बाद, और हमने ऑलरेडी 400 से जायद कंप्लीटली फ्री ऑरल कैंसर सर्जरीज पेब्स हॉस्पिटल में की हैं, जिसमें कि हमने मरीज से एक पैसा नहीं लिया। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर मैराथन रनिंग। यहाँ से मैराथन रनिंग, और मैंने हर मैराथन जो मैं भागा हूँ उसके बाद लंदन, शिकागो, टोक्यो, बर्लिन, न्यूयॉर्क, पेरिस, और अब जो मैं बॉस्टन भागने जा रहा हूँ, ईच एंड एवरी पेनी दैट आई हैव अर्नड हैज गॉन टू द हॉस्पिटल। और जो हम हर साल फंड रेजिंग करते हैं, पैडल टूर्नामेंट कंडक्ट करते हैं, हमारा इदारा पहला इदारा था जिसने पैडल में जो है हॉस्पिटल के साथ अलाइन किया। 2 पैडल टूर्नामेंट हम करवा चुके हैं। तमाम वो पैसा ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी पे गया। हमारे इदारे में अब ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी भी शुरू कर दी गई है पिछले साल से। तो माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर दोनों का इलाज हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ों का ताल्लुक हेल्दी एक्टिविटीज से है और हेल्दी फंड रेजिंग एक्टिविटीज से है। सो कहीं ना कहीं जो मेरी ख्वाहिश थी वो एक अजीब तरीके से सियासत से हटके फिजिकल पर्सनल हेल्थ से आके वेलबीइंग की तरफ चली गई ऑन अ लार्जर स्केल। और इस चीज़ की मिसाल मेरे नज़र में एक्चुअली नहीं कहीं और मिलती। तो मैं इसको रेकमेंड भी नहीं कर सकता। क्या ये एक अजीब इत्तेफाक है? मैं खुद नहीं जानता कि ये क्या है। तो हाउ, मुझे एक बात थोड़ा सा क्लियर करें। यू ऑल्सो एक्सप्लेन कि मैराथन में जब आप पहली रेस भागते हैं, 42 किलोमीटर्स भागते हैं, पूरी आपकी सारी फीलिंग्स जहन से गुजरती हैं, जी, जिस्म से गुजरती हैं जी। Why would you do it again after that if you experience such level of emotion? And walk me through the first run, because 42 kilometers, most people can't run 4. 42 तो दूर की बात है, right? 42 kilometers के अंदर जो, ये मैंने बहुत सारे रनर्स से सुना है कि पहले 10 किलोमीटर कुछ ऐसे होते हैं, फिर 10 से 20 कुछ ऐसे होते हैं, 20 से 30 इट्स लाइक यू हिट अ वॉल और आप कहीं चल ही नहीं रहे हैं, और फिर 30 से 40 suddenly you wake up and there's euphoria and you know so on. Walk me through the breakup of emotions experienced during a run, and how does it change as you increase the number of runs? It's a very good question. So, when you are training to run a marathon, you can't just run a marathon without training. So, let's make that very clear. And being able to run 10 kilometers is okay to be able to run half a marathon. तो अगर आपने पहले रनिंग कभी नहीं की है तो आप बहुत जल्दी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के काबिल हो जाएंगे, और आप 10 किलोमीटर तक भी पहुंच जाएंगे, और वो आपको बहुत अच्छा फील होगा। मुझे आज तक याद है जब मैंने अपना पहला 10 किलोमीटर किया था, फिर 10 से 12, 12 से 14, 16, 18 और 20, 21 तक आना। आपने खुद 2 दफ़ा हाफ मैराथन किए। What really changes is when you commit to run the full marathon. वो 21 किलोमीटर से 42 किलोमीटर पे पहुंचने का जो सफर है ना, वहां आके एप्पल्स एंड ऑरेंजेस अलग हो जाते हैं। तो ये हाफ मैराथन की कहानी तो आप, मेरा ख्याल है किसी से भी सुन ले, सबकी बराबर होगी कि हाँ 3 महीने ट्रेन किया, कर लिया। लेकिन फुल मैराथन रनर बनने के लिए आपको हाफ मैराथन रन करने के बाद फिर 4 महीने की ट्रेनिंग चाहिए, बहुत डेडिकेटेड किस्म की ट्रेनिंग। ये अगर आप अपना पहला भाग रहे हैं, मैं तो 7वां कर चुका हूँ, 8वां भागने वाला हूँ, तो मुझे अब इतनी लंबी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन पहला करने के लिए 4 महीने। अब फर्ज करें आपने ट्रेनिंग कर ली, सैक्रिफाइसेस, विटामिन एन, सुबह उठना, दोस्तों, रिश्तेदारों, घर वालों सबसे लड़ाई झगड़ के अलग हो जाना, अब मेरी जिंदगी अलग, मैं रनिंग में आ गया हूँ। अब आप पहुंच गए टू द मैराथन स्टार्ट लाइन, वेयर यू आर सराउंडेड बाय ऑन एवरेज 35 to 55,000 पीपल, डिपेंडिंग ऑन ये आप मैराथन कहाँ भाग रहे हैं। मैंने अपनी जर्नी में द लार्जेस्ट अटेंडेड मैराथन्स 3 अटेंड किए, जिसमें कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टूटे ऑन द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग, 55,000 प्लस। अब आप 55,000 इंडिविजुअल्स एड्रेनलिन को इमेजिन करें जो आपके चारों तरफ मौजूद है स्टार्ट लाइन पे। म्यूजिक बज रहा है, सुबह सुबह का एक माहौल है, उसके अलावा आपके चारों तरफ एक एक ईद से भी बढ़कर एक समा हुआ है। हर कोई एक
उसमें है एक्टिविटी, अब सीटी बजती है और आपकी बारी आती है शुरू करने की, आप हाफ मैराथन तक तो ट्रेंड है, जो कि आपने पहले ही भाग लिया था इस नशे में पड़ने से पहले। जब आप उस वेव में लिफ्ट हो रहे होते हैं तो बहुत से रनर्स क्या गलती करते हैं कि दे टेक इट फास्ट, दे बिकम फास्टर देन व्हाट दे शुड। अब आई एम अ मिड पेस रनर, आई एम नॉट अ फास्ट रनर, तो मेरी अगर पेस 5:30 से 6 है, 5:30 मिनट्स अ किलोमीटर से 6 मिनट्स अ किलोमीटर के बीच में मैं अगर अपने आप को रखना चाहता हूं, मुझसे अगर ये गलती हो गई कि मैं 5:30 के बजाय 5 और 5:15 मिनट्स अ किलोमीटर पे आ गया पहले 20 में, तो उस वक्त तो एड्रेनलिन मुझे कैरी करेगी, लेकिन फिर उसके बाद आई विल स्टार्ट फीलिंग द प्रॉब्लम, क्रैम्प, पेन, डिहाइड्रेशन। सो मैराथन के अंदर जो जो सेंसिबल मैराथन रनर्स होते हैं, दे नो हाउ टू पेस देमसेल्व्स इन द फर्स्ट हाफ मैराथन। उसमें आप अपने आप को पेस करें नाइस एंड स्लो। इसमें इमोशन नहीं है, इसमें सिर्फ माहौल है, बिकॉज यू आर वेरी पैक्ड, यू आर वेरी क्लोज टू वन अनदर। 20 किलोमीटर के बाद छांटी होना शुरू होती है, 20 किलोमीटर के बाद यू फाइंड योर ऑन योर ओन। अब कोई और रनर है तो दूर है, आगे भी बहुत दूर है, पीछे भी, अब आप बिल्कुल 50,000 के क्राउड में अलग। आपने जिक्र किया कि जी when does it get boring? It gets boring as well. For me and for runners my age, because usually हम पीछे की तरफ होते हैं ना, हम इतने आगे तो नहीं होते क्योंकि हमारे पेस थोड़ा स्लो होता है। That is 25 to 35. 25 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर का जो बीच का जो 10 किलोमीटर होता है ना, उसमें आप बोर हो रहे होते हैं, उसमें आपको मोटिवेशन ढूंढनी होती है। कैसे ढूंढते हैं? पहले तो आप अपने आप से कहते हैं डोंट स्टॉप। द वन थिंग यू हैव टू कीप सेइंग टू योरसेल्फ इज डोंट स्टॉप। Secondly, you have to talk to yourself. You have a conversation with yourself. My conversation with myself has usually been, जो आपका interview है, why am I doing this? Because you ask yourself this question. मैं क्यों कर रहा हूँ? And then I say to myself, and you might find कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके सामने बैठा हूँ, but this is a fact, कि I consider myself close to religion, close to God. I'm a believer. I will not claim that I'm not. And I found that a great way to bide the time at that particular time is कि जो भी मुझे सूरह आते हैं या जो भी मुझे कुरान की आयतें आती हैं, मैं उनको एक तस्बीह की शक्ल में पढ़ना शुरू कर देता हूँ। और दिस इज हाउ आई मोटिवेट माई सेल्फ इन दैट। एंड सेकेंडली, मैं 3-3 के सेट्स बनाता हूँ सबके, एंड देन आई से अ लिटिल प्रेयर कि अल्लाह ताला गिव मी द पेन टुडे so someone else doesn't have to go to the pain of or the cancer. This is my personal journey. I've never said this openly to anyone. So I say this to myself, and I don't know if it helps me, but I know spiritually it does. It galvanizes my purpose more. And then I find कि वो 25 से 35 किलोमीटर का जो एक सेगमेंट था, वो बहुत तेजी से गुजर भी जाता है। और फिर 35 किलोमीटर के बाद जो आपने जिक्र किया वॉल वाली बात, कि वो क्रैम्प्स आना शुरू, दैट्स वेयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मस्ट हाइड्रेट, मस्ट टेक सॉल्ट टैबलेट, मस्ट हैव बनाना बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम। तो बनानाज रखे हुए होते हैं, केला जरूर खाएं, सॉल्ट की टैबलेट जरूर लें, पानी जरूर पिए, बहुत ज्यादा पानी ना पिए वरना आपको यूरिनेट करना पड़ जाएगा। तो वो पूरा एक बैलेंस है जो आप अपनी ट्रेनिंग में सीखते हैं। सो डेफिनेटली ये प्रोसेसेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक, टच वुड, अभी तक किसी मैराथन में क्रैम्प नहीं किया है। न्यूयॉर्क मैराथन में नर्ली क्रैम्प कर गया था, बट आई सेव्ड माई सेल्फ। अब बॉस्टन में अल्लाह ना करे कुछ हो, क्योंकि बॉस्टन इज अ वेरी डिफिकल्ट मैराथन और उसमें अपहिल स्पेशली एंड में बहुत बड़ा आता है, तो आई एम अ बिट नर्वस अबाउट बॉस्टन। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब मैराथन रनिंग स्टार्ट की तो जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ होती थी वो ट्रेनिंग की, जब आपको लॉन्ग रन्स करने होते थे, सैटरडे लॉन्ग रन, जिस दिन आपको 2 घंटे भागना है, जिस दिन आपको 3 घंटे भागना है, जिस दिन आपको 3.5 घंटे भागना है, उफ कोफ्त, दिल नहीं चाह रहा। आप 2 दिन से अपने आप को मेंटली साइक कर रहे हैं, खाना उस हिसाब से खा रहे हैं, कोई सोशल इवेंट नहीं अटेंड कर रहे, 8 बजे सो रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि 2 दिन बाद ये मुझे करना है, राइट? आप अपने आप को कितना सोसाइटी से पुल अवे कर रहे हैं, अपने काम से अपने आप को पुल अवे कर रहे हैं। जिस वक्त आप एक मैराथन करते हैं इससे गुजरने के बाद और आपको वो हाई मिलता है, फिर जो दूसरा करते हैं फिर आपको हाई मिलता है, तो एक चीज मैं इसमें लेकिन जरूर ऐड करूंगा। मैंने इसके पहले आपको कहा था कि अगर मैंने 2025 में बॉस्टन कर ली होती पिछले साल, तो ये एक रिकॉर्ड होता कि मैंने 2 साल में 6 के 6 कर ली होती। लेकिन मैंने 1 साल रेस्ट किया।
वो मैंने 1 साल क्यों रेस्ट किया? क्योंकि मैराथन रनिंग भी इतनी आपको ट्रॉमेटाइज कर सकती है फिजिकली एंड मेंटली कि यू हैव टू स्टॉप. जिस साल मैंने 2024 में 3 भागे, टोक्यो, बर्लिन और न्यूयॉर्क, तो जो बर्लिन और न्यूयॉर्क 4 हफ्ते अपार्ट थे, उसका जो एक मेंटल ट्रॉमा था कि मेरे ना जिस्म ने रेस्ट किया, ना मेरे दिमाग ने उस पूरे साल रेस्ट किया. और फिर आई साइंड अप फॉर पेरिस इन अप्रैल 2005, वो भी सिर्फ 3 months अवे. पेरिस में while I was running, खैर I had a little medical issue before I left. I stopped in the middle of the race. I didn't want to run it. मैं इतना मेंटल मेरे अंदर ब्लॉक आ गया. आपने तो हिट द वॉल की बात की थी ना कि रनिंग में हिट द वॉल, मतलब मेंटली आई हिट द वॉल. रेपिटेटिवनेस की एक इंतहा. खैर आई फिनिश द रेस जैसे तैसे, and then I told myself nothing. How did for you 1 finish year. the race? I ran and paced and I did what I had to do, but I was in pain as well. I was having a few medical issues before I went. I had recently been diagnosed with a cardiac condition as well. And How long was that run? 42.2 kilometers. No, as in terms of time. 5 hours. So I you- did it in 5 hours. So Yeah. you just slowed it down. I slowed it down. I did what I had to do. देखिए runner होता है, but it's the connection. You lose the connection between your head and your feet. Usually the connection is there, but I lost that connection. I was at times using my legs, at times using my head. I was not using both at the same time. That's the problem. Marathon runners have to use both together. So in life, देखें, the constant process of inventing yourself and reinventing yourself, you know it as well as I do. हम लोग स्कूल में होते हैं, फिर हम कॉलेज जाते हैं, फिर हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, इन बिटवीन नौकरी करते हैं, फिर सम ऑफ अस मुल्क चेंज कर देते हैं, फिर शादियां हो जाती हैं, उसमें बच्चे आ जाते हैं, उसमें आपके फिर इन लॉज का एक एडिशन आ जाता है जिंदगी में जो कि पहले नहीं था. आप अपने ही रिश्तेदारों को भुगत रहे होते हैं, फिर एक और भी एक सेट आ जाता है. फिर जिस हालात में आप जिस मुल्क में रहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, अप्स एंड डाउन्स, वी आर ऑल फेसिंग इट इवन टुडे व्हाइल वी आर सिटिंग ओवर हियर, राइट? सो जिंदगी इसका नाम है अडेप्टेशन का. तो स्पोर्ट्स इन माय ओपिनियन हेल्प्स यू ग्रेटली अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ डेली लाइफ. बिकॉज जब मैं रन करता हूं, और आपको तो पता है आजकल मैं बॉस्टन की ट्रेनिंग कर रहा हूं, तो मैं रोज भाग रहा हूं. तो जब मैं रोज भागता हूं ना, तो अब क्योंकि मैं एक तरह से इसका वो बन गया हूं, थोड़ा सा के साथ कर लिए मैंने, तो अब मैं इसका एक एक्सपर्ट इन अ वे बन गया हूं हाउ टू हैंडल द मेंटल साइड ऑफ इट. नंबर 1, आई स्टार्ट माई रन knowing it will end. Now the question is, who am I trying to impress? And the answer is no one. What am I trying to achieve? Something for myself. So one thing that you learn in running is not to impress others, but only to compete against yourself. That is a great discipline. And then you stop looking around for approvals. हमारे यहाँ जिंदगी में बहुत से काम हम करते हैं सिर्फ इसलिए कि जी आगे वाला क्या कहेगा, क्या वो मुझे नोटिस करेगा. आई वॉन्ट टू बी नोटिस्ड, आई वॉन्ट टू बी सीन, आई वॉन्ट अप्रूवल. मैराथन रनिंग, especially for someone like me, has taken away the need for societal approval. I left whatever I was doing that I first thought was everything for me, and I moved on to this. And I am so happy to be where I am today. The things that I've achieved, the 400 plus surgeries we've, alhamdulillah, with the help of society done, will inshallah do more. And the way that we are being supported to align marathon running with this is I think by chance, but I don't think it could have happened without it. I don't think my life would have ever been that focused. Is there a disapproval that comes with your family because they go through an adjustment period with you? Because, I mean, they are now living the same lifestyle as you. No, actually, I think they're enjoying it now because from being an all-boys trip, it has become a bit of a family trip now. So like when I did Japan, my wife and her sister and daughter came along. I'm doing Boston, my wife is with me. And after that, I'm doing Sydney, my wife is with me. So in a way, I think what it's done is it has probably brought the two of us together while we had kind of So she runs with you, the marathon? No, she doesn't run. She travels with me and she enjoys the... She enjoys the... Okay, she's got the better part of the trip. She's having fun, basically. I'm the one who's stressed out. So so what happens is that, you know, where we never actually had an opportunity to have vacations together because we're both doctors and we're both very busy in our lives. So the marathon twice a year or thrice a year has now added an escape that we both go on together. And we leave our son in charge of the house. He's old enough now, so he can look after things. But yeah, it's kind of my house enjoys it. I've been really supported very well by everyone. My mother,
my wife, my son, he's very proud of everything. And then, as you know, I've been very aggressively involved with the organization of Karachi Marathon, all 3 editions of it in Karachi. And so this is creating history in Karachi and Pakistan. I'm really proud to be a part of it. You know, because I was a marathon runner, I think that's how I was able to bring what I brought to the table, completely pro bono. So I'm happy to be able to do this. You saw the first marathon, we had about 1,000, 1,200 runners. The second marathon, we had about maybe 3,000, 3,500. This time we had over 7,000 runners. There's 7,000 people who There's ran. five in all categories. And hopefully How many ran the 42? I can't remember the figure right now, but I think it was somewhere between 2,500 to 3,000. So a lot of the training takes place in various places. Malir mein, you have the Malir runners. Then in PCHS and KDA, you have another lot running over there known as the Wednesday night paces. In defense, you have SVRC. Yeah, Born to Run as well, even though they're not marathon focused, but they are running. A lot of the running is happening in parks. So there are people in Gulshan Iqbal running in parks. There are people around the airport. Because airport में आपने वो रोड नेटवर्क देखा है जब आप एंटर करते हैं बड़े वो ASF का दफ्तर और वो बड़े नेटवर्क्स उधर लोग रन कर रहे हैं मलीर में लोग रन कर रहे हैं इस वक्त पूरे कराची में और PCHS वाले हमारे दोस्त तो सबसे बड़े फायदा है क्योंकि उनके पास हिल रूट्स हैं और बड़ी बड़ी सर्विस लेन्स हैं उनके पास So it's everywhere. Phase 8, Ramada, Zamzama Park, Hilal Park, Nisar Shaheed Park. रोज स्ट्रावा खोलें रोज आपको इस वक्त पूरे कराची में लोग रन करते हुए नजर आएंगे एंड द ब्यूटी इज इस्लामाबाद में भी यही है लाहौर में भी यही है हर जगह यही हो रहा है इस वक्त Dr. Jazib Mughal, thank you so much for taking the time. Your journey is amazing. I think you've hopefully inspired a few people to get into marathon running and also align something that you are passionate about with the cause, because I think a lot of people forget that. And I wish you all the success. I believe there's a few people you wanted to say thank you to as well. Yeah, I want to take this opportunity to firstly thank you for giving me this opportunity to come on your show. Let's do that again. So I want to start by thanking you for the opportunity Anytime. to come to your to this show, because I've been following you and I've seen what a great job you do and Thank the you. various topics that you bring forward. So I'm in fact humbled and honored that you gave me this opportunity to talk about marathon running, a healthy lifestyle, and how being a busy doctor and surgeon, you can still pursue and dream and make things a reality. But what is very important here is for me to mention that while we sat here and spoke about what I have done, none of it is possible without the help and support of people that make the journey possible. So first and foremost, I must thank my mother, my wife, my family for supporting me. None of it could have been possible. Whether it was me in politics that they supported and tolerated, whether it was me waking up early in the morning and going for my runs and then saying I want to build this hospital and all, followed by the hospital, which stood by me and said, we are with you. And as the president of our society, Qazi Sajid Ali Saab, always says, and I say that he's inspired by Nike, because everything that I say, he says, just do it. And that's something which I really hold very dear to me. And then there are those that have been very close to me in my journey. I don't want to take any names because if I miss any name, it might offend someone. But yes, there are people out there who've really stuck themselves out for the cause, for my vision, whether it has been organizing the paddle tournaments, whether it has been the fundraisers that we've done, 3 of which at Acton House, British Deputy High Commission, those have been a big success. Whether it has been creating awareness on social media, the alignment that has taken, and the hard work and effort that is put in by the team that does that, I really appreciate all of it. And then there are so many people who believe in it and who've been giving me money, who've been sitting in other cities. I had a friend recently who I met after 22 years. He's a friend of mine in London who I knew very well then. And he's now back in Pakistan and he's based in Islamabad. And he just visited Karachi. I happened to meet him and we connected and I showed him everything and told him everything. And he said, okay, I'm going to go and do fundraising for you. And within 3 months, he turned around with 20 million donation. Wow. These are the kind of people who've come forward. And I've been surprised just when I've thought I'd have to lock it up and stop it, because we were in so much deficit at one point that I was in over 10 million deficit. And I don't even know how it happened. In 7 days, there was a 15 million check in my hand.
So these things have a way of working out. So I just want to thank everyone. First and foremost, I know I'm a religious person कि ये तो अल्लाह के नाम की चीज़ थी और मैंने तो उसी के लिए बनाया. और अल्लाह ताला कहता है कि एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाना है. तो जितनों ने भी इस सदका जारिया में मेरा साथ दिया है, मैं इसका सवाब खुले दिल से सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ. और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ जिन्होंने भी इसमें हिस्सा डाला कि चाहे वो 10 रुपए था या 10 लाख रुपए था, जितना भी था, इस सदका जारिया में आप उतना ही आपने सवाब कमाया है जितना मैंने शायद कमाया होगा. किसी का इसमें बड़ा या कम नहीं हो सकता क्योंकि आप थे तो ये इदारा था और ये इदारा था तो मैं था. तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ. इसी के साथ आई जस्ट लाइक टू थैंक यू फॉर दैट. Thank you, Dr. Jansid. I wish you all the best and good luck in Boston. थैंक यू. And thank you for tuning in. Like, subscribe, comment कीजिए and we'll see you next week. Bye-bye.